hours. Namaskar. Hello and welcome to this inaugural edition of Mantras of Management, where we would be going in depth with a host of Maharishi of Management. और इस यात्रा में, इस ज्ञान यज्ञ में इसको पिरोने के लिए हमारे साथ एक ऐसे ही प्रबंधन के महर्षि हमारे साथ रहेंगे इस पूरी यात्रा में अनवरत, क्योंकि प्रति सोमवार संध्या 7 बजे आप सभी के साथ हम लोग रूबरू होंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे श्री सुधीर अग्रवाल सर, who is better known in his entire management circles as a CXO with a difference। क्या कुछ हम अगले अंक से और नए नए महर्षियों से आपका साक्षात्कार कराएंगे, पर आज जो इस पूरे यज्ञ के होता हैं हमारे सुधीर अग्रवाल साहब, what makes him a CXO with a difference? I would just like to take you through in a short while what actually this persona is all about और हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, because management has become too crowded a term. So प्रोफेशनल परिचय के रूप में सुधीर अग्रवाल सर happens to be the director of business development, government and education currently with the Microsoft. He also happens to be the founding member of Geetanjali Institute of Technical Studies, Udaipur, Sarovar ki Nagari, Udaipur. Lots of enthusiasm. Sir has been in loads of things. And he is on the industry academia board. That is his predominant passion कि education और industry को कैसे साथ में जोड़ा जाए,
this has been some of his biggest pursuit. And he's also the president of SIAB, something Sir would tell more about it. And coming bottom line, like today in the management circles, Sir finds himself very proudly that I am a bachelor's in commerce from the Ramjas School of Delhi University, and his entire management career spanning 4 decades comes from his practical, hands-on and pragmatic experiences. तो उनकी जो pearls of wisdoms हैं, उनके जो mantras of management हैं, जो 4 दशकों में उन्होंने सीखे, समझे और विश्व की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के चीफ होकर बड़ी हाईएस्ट पोजीशंस पे जाके उन्होंने उस सहज प्रबंधन का जो उनका रूपक रहा उसको कैसे उन्होंने लिया. एंड समथिंग विच इज क्वाइट पर्टिनेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज हमारे भारतवर्ष में मन की तो बात बहुत है शास्त्र में, पर मैन का मैनेजमेंट, बिकॉज वी फील दैट देयर इज अ फ्री विल इन अ मैन एंड द मोटिवेशनल इंसेंटिव्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट हैव बीन quite different, and something which Sudhir has championed phenomenally across his phenomenal career. So I can just go on and on. Lots of boards he has served, all the MNCs, all the topmost corporations which we youngsters aspire to join in, and he sustained and thrived in all these corporations, in all the leadership roles he was there. तो ये जो सीरीज हम लोगों ने प्रणयन किया, there is a lot of talk of management today and lots and lots of discourse over there. So why this mantras of management? So somewhere or the other, the underlying central theme and thematic कि आज भारत उठ रहा है, भारत अपनी अंगड़ाई ले रहा है, दोबारा से अपनी जो सिविलाइजेशनल prowess है उसको विश्व में उसका निनाद हो रहा है. So one of the central thoughts behind this entire series is to evoke self-awareness and civilizationally assured leadership. Now, if India has to really fulfill her destiny all over again in the Committee of Nations and organize, it's all possible because of an organized effort, and that's where the whole, I would say, doctrine, the whole discipline of management comes into place. So the central theme is how we can evoke a self-aware and a civilizationally assured leadership, because that will only really build a Divya and Bhavya Bharat and Atmanirbhar Bharat in the rightmost sense. And there cannot be any better invoker, any better hota, as we have the term in our parampara, कि यज्ञ के होता हुआ करते थे, who used to be the master of those yagnas. So we have with us Sudhir Agrawal Sahab. So with this initial introduction, I just pass it on to him. I am just his young pupil. एक student की तरह एक उपनिषद में एक छात्र की दृष्टि से उनके समक्ष बैठकर उन्होंने जो मंत्र प्रणयन किए हैं, आप पीछे की स्क्रीन पर देख सकते हैं. बहुत सारी नई नवेली थीम्स उन्होंने अपने 4 दशक के इस कार्यकाल में उनका प्रणयन किया. He evolved them across, and he would be taking them and inviting the Maharishis of management, not just rishis but Maharishis, whom he has, I would say, interfaced in his phenomenal career in newer and newer episodes. And this conversation, this in-depth, would just go on and illumining us all. So over to Sudhir sir to take it on. And today's session is all the inaugural one. और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक एक करके जो एक एक ये थीम है, एक एक ये जो मंत्र हैं, इनको सूक्ष्म में, what are they all about, and in depth we will be taking up in consequent editions. Sudhir sir. Thank you, Raghav. I think you have achieved the masters in embarrassing people. And I call this as positive embarrassment. So Raghav, आपकी तरह, I think if I speak in English, I think that will be fine. Sir. So thank you very much, Raghav, for both the things. One, for embarrassing me, and I'm thoroughly embarrassed. So your purpose is achieved. Second, thanks very much for extending such a responsibility onto me to engage with you and work with you on such a theme. Because आज की तारीख में अगर हम देखें तो शब्द मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बदल गया है.
और आई थिंक धीरे धीरे हम जो फोकस देख रहे हैं, जो मेरे को लगता है, और ये मैं इसके बड़े पैशनेट हूँ इस बात को लेके, कि आज का सबसे बड़ा चैलेंज किसी के लिए भी, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोसाइटी है, सबसे बड़ा चैलेंज है स्टेइंग रेलिवेंट। और वो ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरे को, मैं बहुत क्लियर हूं कि आज जिस तरह की हमारे आसपास डेवलपमेंट हो रही हैं, उसमें अगर हम अपने आप को चेंज ना करते रहें, अपने आप से बात ना करें कि एम आई स्टिल रेलिवेंट, यू नो व्हाट डज इट टेक फॉर मी टू बी रेलिवेंट, आई थिंक हम अपने आप को ऑलमोस्ट इरेलीवेंट बना देते हैं, खाली फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। और क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो, उसकी जो कंट्रोल है वो भगवान के पास है, तो वो नहीं खत्म होती। लेकिन अगर आप उसको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो वो नेचुरल डेथ भी हो जाती है ग्रुप्स, पूरे ग्रुप्स की। और मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। जब हम छोटे थे और जब हम बढ़ रहे थे, तो उस टाइम पर कुछ ब्रांड होते थे। There used to be certain, you know, enterprises in the company, and I am coming from the point of relevance. अगर आप देखिए तो जब हम छोटे थे तो हमने सुने थे, अब मैं कुछ नाम लूंगा लेकिन इन नामों का ऐसा नहीं कि कोई रिफ्लेक्शन है, बट हम बात करते थे उस टाइम बिरलास होते थे, थापर्स होते थे, यू नो सिंघानियाज होते थे, मोदीज होते थे। तो वो एक ग्रुप होते थे एंड दे यूज टू रन द कंट्रीज इकोनॉमी। हुआ क्या है, जो जैसे जैसे वक्त बदलता गया, नए प्लेयर्स, तो नए कॉन्सेप्ट्स, नई टेक्नोलॉजी, नए एनवायरनमेंट आते रहे, वो तो आपका इंतजार नहीं करेंगे। तो उसमें जो अपना पेस रख पाया वो चलते रहे, वो बढ़ भी गए। और जो नहीं रख पाए, आई थिंक मुझे उसके आगे कहने की जरूरत नहीं है कि टुडे सम ऑफ देम आर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। एंड एग्जिस्टेंस किसकी है, मतलब ऑन द पॉजिटिव साइड अगर आप देखिए, WhatsApp for $19.2 billion startup got sold, right? Today if you look at Indian brands, मुझे आई थिंक हमें इंडियन ब्रांड्स की बात करनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो पेटीएम ब्रांड, आज की तारीख में इंडियन ब्रांड्स हैं जो लीडिंग पोजीशन ले रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल यहां पर लूंगा, एजुकेशन में आप अगर देखिए कि जो पिछले 2 दशकों में, जिसको हम कहते हैं एडटेक, जिसके नाम धीरे धीरे हम बात कर रहे थे, वो जो प्लेयर्स आए, आज हो क्या रहा है कि जब नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो वो एक्चुअली जो पिछले 2 दशकों के ब्रांड थे, दे आर गेटिंग कंज्यूम्ड बाय दिस न्यूअर ब्रांड्स। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक तो जो नए ब्रांड्स आ रहे थे उनकी लेगेसी नहीं थी, दे क्रिएटेड अ न्यू लेगेसी। एंड आई थिंक दूसरा बड़ा क्लियर रीजन है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, दे वर नॉट एबल टू कीप द पेस। तो आज के वक्त में, आज के समय में सबसे बड़ा जो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है वो है स्टेइंग रेलिवेंट। और ये आप देखिए तो चाहे हम घर में अपने परिवार में हो, अपने समाज में हो, दोस्तों में हो, प्रोफेशनल वर्क पे हो, हर जगह रेलिवेंस जो है उसका एक सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। लेकिन आई थिंक कीप लर्निंग का वो अपॉर्चुनिटी, इसीलिए आजकल क्या कहा जाता है, रीस्किलिंग। रीस्किलिंग इज द बिगेस्ट थीम। आज आप देखिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं वो सब इसी की बात कर रहे हैं, रीस्किलिंग देयर मैन पावर। क्योंकि जहां पर हमारी आईटी इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं, जहां पर ह्यूमन बीइंग ही आपकी सबसे बड़ी कैपिटल है, उसकी रीस्किलिंग हैज बिकम वन ऑफ द मेजर टास्क। और उसी संदर्भ में मैं हमेशा कहता हूं कि आई थिंक दिस इज अ टाइम व्हेन कॉर्पोरेट्स एंड एकेडमिया नीड्स टू, आई थिंक, handshake, like, much thicker handshake
when they should hold each other and they should move forward. तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी जैसे हम बात कर रहे हैं इस पूरे थिंक, तो मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है. बहुत लीन एंड मीन ऑर्गेनाइजेशन हो गई. और आज के वक्त में आप अगर स्टेक होल्डर के हिसाब से पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं अपने आप को, तो आप ऑलमोस्ट यू आर डन विद योरसेल्फ. अब उसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा सरकार. चलिए, कॉर्पोरेट में तो आपको एग्जिस्टेंस की जरूरत है. आज आप सरकार को देखिए, सरकारें बदल रही हैं अपने जिसे कहा जाए तौर तरीकों को. क्यों? क्योंकि आज उनके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बदल गई है. मतलब मैं उस समय का मुझे खूब याद है जब पासपोर्ट का फॉर्म, ये मेरा फेवरेट है, शायद मैंने पहले भी आपसे बात की उस बारे में. पासपोर्ट का फॉर्म जो 10 रुपए का फॉर्म होता था वो 100 रुपए का मिलता था, वो भी ट्रैवल एजेंसी वाला जो पासपोर्ट एजेंट था, इस शर्त पे कि पासपोर्ट आप उससे बनवाएंगे. और उसको 2000 रुपए, आज नहीं, मैं 20 साल पहले कह रहा हूँ, उसको 1000 रुपए 2000 रुपए देते थे पासपोर्ट बनवाने के. आज आप देखिए, घर में बैठ के, ये मेरा फेवरेट तरीका है बताने का, 11 बजे रात को बैठ के ठंड में रजाई में बैठ के आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, और आपकी अगर अपॉइंटमेंट 4 बजे की है तो आप 3:45 पे वहां जाइए, आप बराबर आपको क्यू में रिसीव किया जाए. कि क्यों बदला है? इसलिए नहीं नेसेसरली कि सरकार शब्द बदलना चाह रही थी, क्योंकि आज जो स्टेक होल्डर प्रेशर है वो अलग है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ये सब नए टर्म्स, हमें नए टर्म्स लगते हैं, बट ये रियल है. तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकारों जैसी चीज, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत भारत में उनका बहुत बड़ा सिस्टम है और उन पर कोई इंटरनल चैलेंज नहीं था, आज वो भी स्टेक होल्डर की वजह से बदल रहे हैं. जैसे मैंने एजुकेशन में कहा कि जो नया अगर आप थिंकिंग के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो यू हैव अ चैलेंज. तो इसलिए बहुत जरूरी है हम जो भी करें, इट हैज टू बी लुक आउटसाइड इनसाइड. कि हमें स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से चाहिए कि हमें क्या, आज हमारा स्टेक होल्डर क्या मांग रहा है. और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टडी कर ली तो उस पर, आज की तारीख में अगर आप देखिए तो रिडंडेंसी जो है, ऑब्सोलेंस जो है, इट हैज कम डाउन फ्रॉम ईयर्स टू मंथ्स. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने कैरियर शुरू किया था तो लेट अस से इंटेल अगर एक चिप लाता था तो 5 साल में चिप लाता था, हिंदुस्तान में 1.5 से 2 साल बाद वो चिप आती थी. आज आप देखिए, चाहे मोबाइल का है चाहे कोई भी चिप है, every few months, less than a year, you have new chip come, and same time getting launched in India because India has a market. तो समय जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और किसी का इंतजार नहीं करता है. जी. तो आपको समय के संग पेश रखने के लिए बहुत जरूरी है लुक आउटसाइड इनसाइड. So when we say time, because management has a lot of time is an integral element, but आप एक बड़े परिदृश्य में समय की बात कर रहे हैं, तो staying relevant की जो बात कही है, what are those elements, what are those forces and powers which are making this change so volatile and so fast? Because you have been a techno manager, you have seen technology, the power of it. तो वो जो forces हैं उनके बारे में, उनकी dynamics के बारे में भी बताएं कि किस संदर्भ में आज हम बैठे हैं और इसका फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है. बिकॉज इट्स क्वाइट अ वोलेटाइल इकोसिस्टम वी आर फेसिंग टुडे. सो स्टेइंग रेलेवेंट इज द गोल, बट कौन सी शक्तियां हैं जिनके साथ हमें स्टेइंग रेलेवेंट रखना है? देखिए, 2-3 चीजें मैं इसमें कोई लॉन्ड्री लिस्ट नहीं बनाएंगे हम उसकी. सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी, जितनी डिसरप्शंस हो रही हैं आज, और डिसरप्शन मैं इनको पॉजिटिव सेंस में कहता हूं, वो टेक्नोलॉजी लेड है. तो कीपिंग पेस विद द टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं उसका एक बड़ा क्रूड एग्जांपल दूंगा आपको. जो टिपिकल हाउसवाइफ हैं, आपने अगर उन्हें कहा होता कि आप डेस्कटॉप पे बैठ के फेसबुक कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, वो और जो टूल्स आते हैं उस पर आप रहिए, शायद वो आसानी से कभी नहीं आती.
पर वो सब चीजें जब मोबाइल पर अवेलेबल हो गई, उन्होंने SMS से शुरू किया, व्हाट्सएप से शुरू किया, आज फेसबुक पे हैं और बाकी के एटलीस्ट हाफ अ डजन एप्लीकेशन यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो मोबाइल हैज बीन अ रियल ट्रांसफॉर्मर इन द सोसाइटी। और इसीलिए मैं हमेशा धीरू भाई अंबानी को, मतलब रिलायंस ग्रुप को मानता हूँ। जब उन्होंने 500 रुपए में हिंदुस्तान में डिवाइसेस बांटे थे विद नो अकाउंटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, आई थिंक जो इस देश का, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनको कहूंगा कि इस देश का अगर रिक्शा वाला, सब्जी वाला आज मोबाइल कैरी कर रहा है, आई थिंक वो एवोल्यूशन वहां से आई थी। तो टेक्नोलॉजी लेड जो हैं, और हमें ये बहुत केयरफुली असेस करना है कि जरूरी नहीं कि हमें सारी ही टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है या सारी ही टेक्नोलॉजी को समझना है। हमें देखना है हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलिवेंट है, और उसको हमें अपने आप पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा अडॉप्ट करना चाहिए। जी। तो दैट इज वन। दूसरी बात, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने ऐसा एक एवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, तो जो हमारा समाज है वहाँ की, आज आप देखिए जो यंग जनरेशन है, उनकी सोच बहुत अलग है कंपेयर टू पीपल लाइक अस। हमारे वक्त में क्या होता था, भाई आप CA कर लो, आप मेडिसिन में चले जाइए, या आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, बड़े लिमिटेड कैरियर ऑप्शंस थे। आज कैरियर ऑप्शंस इतने हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हमारे बच्चे, जैसे मेरी बेटी ने जब वो 10th में थी तो मुझे कहा था पापा मैं फैशन करूंगी। अब मुझे फैशन का ABC नहीं पता था, पर मुझे इतना पता था कि माई किड नोज मोर देन मी अबाउट हर कैरियर चॉइसेस। So I just stood by her. I said, I'm okay, beta. Then she passed out with a good marks by taking humanities, and then she went into fashion styling. And today she works for one of the global brands in fashion. तो फर्क यह है कि आज की जो जनरेशन है, हम लोग बहुत गाइडेड थे जब हम छोटे थे, लेकिन आज के वक्त में जो जनरेशन है उसकी थिंकिंग बहुत अलग है, उसका एक्सपोजर बहुत अलग है, उसके पास सोचने समझने का इतने साधन हैं जो हमारे टाइम पे कभी थे ही नहीं। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं। अब जैसे हमारे टाइम पर एयर ट्रैवल, हमारे टाइम पे इंटरनेशनल ट्रैवल यूज्ड टू बी वेरी वेरी रेयर, सेलिब्रेटेड। आज फॉर वेकेशंस किड्स गो अराउंड एंड ऑल दैट। तो वक्त ये जो बदल रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है, उसके साथ साथ हमें वी हैव टू कीप पेस। अब मैं आपको अपना एग्जांपल दूं। ऑल माय लाइफ I never invested in anything other than FDs and SB accounts. But my kids have just started the career and they said, Dad, we want to invest in mutual funds, maybe 5,000 rupees a month. Now, change, keeping pace with the change का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, stay relevant का, कि रेजिस्टेंस ना दिखाते हुए मेरा काम जो है बच्चों को गाइड करूँ कि हाउ डू यू डी रिस्क योर सेल्फ, what precaution you should take, you should not take overexposure. That's all. But let them consult the professionals in this field and let them engage with them. So honestly मैं बताऊं, उसको देख के कहीं ना कहीं मैं भी कह रहा हूँ चलो थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूँ। तो ये staying relevant की चीजें हैं। So in a sense, what you are saying that technology has somewhere disrupted the entire ways and means, and every era had its own technology. So today we are like the last 20 years have been led by the information technology, and now the convergence of all the technological platforms into the fourth industrial revolution, as we call it. It's coming. The new paradigms of technology are evolving, and technology is outpacing the older ones. So what you said is, in order to stay relevant, you have to be exploratory. You have to be a bit daring and explore. And now here comes the closure of it. Like, I am daring, I am an adventurist, but I have also to be cautious. So that's where this rounded mantras of management, ki how to be cautious. And with this, I would like to say ki in this whole journey, because Sudhir sir has himself coined his own paradigms of management, and we will be taking a one by one every week. तो वो कॉशन का जो भाव है कि भाई गाड़ी में एक्सेलरेटर है, आई एम एडवेंचरिंग, बट ब्रेक भी है,
So what paradigm you would suggest just to close this part of the conversation? Wonderful, Raghav. I love you for this. See, I have coined a concept myself, Wang at. What I am not good at. Okay. So all of us have learned about SWOT analysis. Now, 2020, I was doing a lot of training programs. So I coined this term during that, at Innovation Technologies, I was doing a lot of training. I was engaging with the academy students. While delivering my sessions, I learned a concept called Wang at. It evolved during my conversations. Okay. What I'm not good at. So first pre-qualification of that is when I say Wang at, it is not a weakness. Weakness is something like which is very inherent to me. Like, I lose my cool, I always spend more than my pocket, whatever it is. That is my weakness. But what I'm not good at is not weakness. Why? Because let's say I'm the best project manager on the earth. No other project manager can beat me, even come closer to me. But I may not be a good negotiator. I may not be a good, documenter. Now, it is important to know what I am not good at. Then what I do, जब मैं ये पहचान लेता हूँ अपने आप से बात, सबसे पहले तो दिक्कत ये इंसान अपने आप से बात नहीं करता. Okay. मतलब अभी आप बोलिए राघव की क्या समस्या है, मैं ना अभी शुरू होऊंगा और सुबह 7 बजे तक आपको राघव की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या जिंदगी में सुधार करना चाहिए, मैं खत्म नहीं होऊंगा और मैं चालू रहूंगा. लेकिन कोई मुझसे कहेगा कि सुधीर अग्रवाल तुम व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, तो मैं करके आई लुक लेफ्ट राइट सेंटर एंड आई वोंट नो. So first thing, it is important that we talk to ourselves. Wang at. So once you realize what I'm not good at, what you do, you look for either resources, look for some processes, look for technology, look for something to support you, supplement you. आपकी वीकनेस को आप ही ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन what I am not good at can be supplemented by other resources. तो जो बात आप कह रहे हैं इसमें यह है कि बहुत जरूरी है, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि what should I venture into, what I should not venture into, and keep checks and balances. Not that I have decided to do this, so I'll just do this. Like even today, when it comes to ordering food through the app, I never do that. I still look for somebody. Office में मैं किसी की help लेता था, घर में बच्चे करते. So I know I'm not good at that because मैं गलत ऑर्डर कर दूं, उससे अच्छा है कि I should realize that I'm not good at this and then I take somebody's help to do that. So राघव, आपकी जो बात है वो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान नहीं करता या बहुत कम करता है अपने आप से बात, अपने बारे में बात, वो कीजिए और ये रियलाइज कीजिए कि समय के साथ हमें क्या चीज हमें सीखनी है, क्या चीज हमें सपोर्ट से काम चल जाएगा और क्या चीज मेरे लिए जरूरी है ही नहीं, उसमें आई डोंट हैव टू वेंचर इनटू दैट. एंड देन जस्ट इट्स अ जर्नी. व्हाट यू डू टुडे, एंड this is what makes Sudhir sir a CXO with a difference. इन्होंने कितनी सुंदरता से सेल्फ अवेयरनेस को, जो हमने इसकी सेंट्रल थीम रखी कि all kind of management, it all accrues, starts from being self aware. So what I am not good at actually translates into focusing that what I can be good at, and when you focus upon that, and that's where the organizations do come into place. तो इतनी सहजता से, इतनी सुंदरता से जो ये मंत्र सर ने उद्भाषित किया है, आई थिंक सर दिस इज रियली टेरिफिक. एंड तो व्हाट ऑल थीम्स यू फील वी विल बी टेकिंग अप, बिकॉज we feel that we will keep these sessions very short and sweet so that quick messages go and it can evolve into a kind of a learning module, a hands-on management from a civilizationally assured paradigm. तो सर ने जो बात कही, मैं थोड़ा सा भारतीय अधिष्ठान लेकर आना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पूर्णता की बात होती है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. So we have been in the quest of infinity for perfection for ages altogether. तो वहां पे हमेशा ये भाव था कि being a human being, I have my own limitations. So we never asserted that I can be the whole, I can control it all. So that aspect of humility
and that aspect of learning. And sir is a testimonial of it all, that how beautifully he has remained relevant even after a prolific career across 4 decades. He's the most relevant person, which even a youngster like us have to really bhago find behind him, कि भाई to catch up with Sudhir sir, because he is still futuristic, he is still keeping himself relevant. तो सर एक सूक्ष्म सारांश में ये जो हमने इतनी सारी बातें कही हैं, इसका एक क्विक जैसे ये क्या श्लोक है, ये क्या मंत्र है, और कैसे कैसे हम इनको अगले संस्करणों में इनको आप व्याख्यायित करेंगे, और जो अलग महर्षि को हम इनवाइट करेंगे इस सेशन में, तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दें. Sure, Raghav. So I will say two things before I go to that. Let me share with you. मैं पिछले 17 सालों से 17 years से I have been working by far as an individual contributor, not like a manager. I had an opportunity to be a manager, head of certain teams. I chose to be individual contributor. अब उसका फर्क क्या आप देखते हैं जी. जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो यू हैव पीपल टू डू एवरीथिंग फॉर यू. मतलब आपको मीटिंग फिक्स करने से, मीटिंग प्लान करने से, मीटिंग करने से, मीटिंग डॉक्यूमेंट करने से, हर चीज फॉलो अप करने से यू हैव पीपल टू डू इट फॉर यू. बाय डिजाइन फॉर लास्ट 17 years, बाय फार आई थिंक मे बी एक्सेप्शन ऑफ 1 year or so, I have been working like an individual contributor. That is the reason possibly at the age of 57 I got a call from Microsoft to join Microsoft. Why I'm saying, because when you work like an individual contributor, it requires hell of efforts because now you are doing hands-on everything yourself. So you don't have a choice but to keep pace with things what are coming your way. I think sir has given another mantra, and in fact he has disrupted the entire discipline of management per se, the entire term of it all. Ki if everyone is doing his work, his or her own work as an individual contributor, and they are all cooperating, I think the organization becomes really organic, and that is the futuristic organization, the lean and thin, like a one-person director company. So a single person covering the 360-degree curve and taking a lot of assistance from technological tools, because whatever sheds off on the interfaces, the excellence, the quality of it. And I think one of the sessions I would be talking all about being an individual contributor as to how he does, and also educating the larger community how they can do it. So lovely sir, lovely. Please. एंड जहां तक बात आ रही है कि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए कि धीरे धीरे जो वर्ल्ड है, मतलब हम अगर उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं. मैं आज भी अगर मेरी हंगर है कि 200 people should report to me, 3 level of hierarchy should report to me, I think we are living in yesteryears. True. Irrespective of my age, irrespective of my background, irrespective of my compensation, irrespective of my title, I should be willing to work in a team sometime as a team member. I may be head of a function, but I should have the courage to work like a team member in one other team, and ensure onus is on you as an individual now to make sure that others are more comfortable working with you, accepting you as a team member, and you contribute like a team member rather than continue to throw your weight around of your actual title, actual compensation, actual position that you achieve. मुझे लगता है आज 3 मंत्रों का पुरस्चरण हुआ है, और मंत्रों को उद्भाषित करने के बाद उनका चिंतन और मनन, so that they delve deeper into us. We would like to stop over here. सर ने 3 बड़ी विशेष बातें आज सहज में ही कह दी, because this is what a practitioner's ज्ञान is all about. क्योंकि जब आप करते हो तो आपका वो जो ज्ञान है वो बड़ा सहज हो जाता है. Staying relevant, the first mantra, very important, and the entire dynamics around it. And sir is a I would say an example of it, a living example of it all. Then what I am not good at, that is something really terrific. बिकॉज सॉट एनालिसिस अगर हम मैनेजमेंट जार्गन में पढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं, पर सर ने शुरू किया कि व्हाट आई एम नॉट गुड एट. सो दैट इज वेयर स्टेइंग रेलेवेंट बिकम्स, आई थिंक ये बड़ा अंतर्गुम्फित सर का एक रूपक है.
And finally, he has given the mantra of lean and thin organizations, that contributing like an individual and not as a manager. So I think with this, we would like to stop. We will keep these mantras short and crisp, so that the whole idea is can we imbibe 1, 2, or 3, any one of them in our own lives and make an improvement of it all. Because any knowledge has no value if it is not put it into action. And that is where the CXO with a difference has been with us this evening. Thanks a lot, sir, for sharing this lifelong wisdom, this distilled wisdom with all of us. And we would be back next Monday at 7 p.m. And we would be inviting some Maharishi as well. And if any of the ones in the audience, maybe Kanchan ma'am would like to come in and just comment upon, or any question, we would like to give an opportunity for another 3, 4, 5 minutes, please. Yeah. Sure. And Jaideep Karsa. Yeah. Yeah. Thank you, Sudhir sir. That was very, very insightful. बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर. ये काफी आपके सालों का एक्सपीरियंस का वो निचोड़ है, तो I really appreciate that. मेरा क्वेश्चन ये था कि as time goes by and you keep on learning, तो हमें बोला जाता है कि learn कीजिए, पर after a while don't you reach a pinnacle when you say enough of, मैंने बहुत सीख लिया है, अब नहीं सीखा जाता. At a certain age you start saying that. तो ऐसी situation को कैसे avoid किया जाए when you think that you know everything और आपको ना समझना है ना पढ़ना है ज्यादा, तो ऐसे मतलब तो कैसे वो इंटरेस्ट रिटेन किया जाए, मैं ये समझना चाहती थी. सर आप म्यूट पर हैं. ये आजकल एक नया मंत्र है. आप म्यूट कर दो. तो मैडम इसको मैं दो तरह से कंचन मैडम बात करना चाहूंगा. आप मेरे को कंचन से आप संबोधित कीजिए. श्योर. सो कंचन मैं इसको दो तरह से कहना चाहूंगा. एक तो इंसान को हमेशा अपने आप को चैलेंज करता रहना चाहिए, और वो काम करता है जब अपने आप से बात करता है. सर मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जब मैं बहुत टाइम पहले IBM में था, मैं NIC में जाता था, तो मैंने ना एक दिन अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया, डिड आई अर्न माई टुडेज सैलरी. और कहीं आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे अपने आप से जवाब मिला नहीं. क्यों? और मुझे अपनी कोई भी जो पिछला मेरा पास्ट है, मेरी बैकग्राउंड है, उसके बारे में मुझे बात करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है. मैंने ये पाया अपने आप से बात करते हुए कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके संग मैं बड़ा कंफर्टेबल था. वो मुझे अपने केबिन में आने देते थे, चाय पिलाते थे, बिठाते थे, गप्पे मारते थे, पर उनको एक पैसे का धंधा नहीं देते थे मुझे. और कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जिनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स थे, बहुत पैसा भी था. क्योंकि मेरे रिलेशनशिप नहीं थे, या वो टफ लोग थे, या मेरा कंफर्ट जोन में था मैं, तो मैं उनके जाता नहीं था. जब मैंने अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया, डिड आई अर्न माई टुडेज सैलरी, it shook me, and that helped me opened up to go to those people and stop going, or minimize going to these people. Right, sir. That is the first thing. Second, आज के जमाने में हमें we have to be, जैसे कहते हैं ना, young India. तो मैं ये कहता हूँ कि everyone has a child in oneself from birth to death. Don't let the child die. वो क्या होता है, आप में अगर एक बच्चा रहता है ना, तो एक जिसे कहते हैं उत्सुकता रहती है कि ये भी. और कभी भी फेलियर से मत डरिए कि उम्र का ये मत सोचिए कि अरे आजकल तो यंगस्टर के सामने आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, भैया तुझे ही आता है, मुझे नहीं आता है, बता दे. तो हमें ये थोड़ा सा ना करेजियस होना चाहिए. और ये थोड़ा ये रिस्पेक्टिव सिचुएशन, लोग क्या होता है, जैसे बहुत पैसा हो जाता है, पोजीशन मिल जाती है, या लाइफ में थोड़ा डाउनफॉल आ जाता है, उस सिचुएशन में लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं. पर मैं ये कह रहा हूँ, ये आपके पर्सनालिटी में आना चाहिए, ये आपकी जहन में रहना चाहिए कि मैं अभी एक बच्चा हूँ. तभी तो मैं 56 ईयर्स की एज में अपनी जो नाती है उसका घोड़ा बन जाता हूँ ना मैं, क्योंकि मेरे में अभी वो बच्चा जिंदा है. मैं आज भी कहीं खड़े होकर डांस कर लेता हूँ किसी के साथ भी. क्यों? क्योंकि वो बच्चा जिंदा है मेरे में. राइट सर. तो इसका जो है ना, क्या होता है कि लोग कॉम्प्लिसेंसी जो वर्ड बड़ा वो है, वो आजकल उन शब्दों का कोई मतलब नहीं रहेगी.
बिल्कुल तो आपको कंटिन्यूसली कहते हैं ना यंग इंडिया, तो डू आई एम अ पार्ट ऑफ यंगिस्तान? आई एम अ पार्ट ऑफ यंगिस्तान. एब्सोल्युटली Gray hair, no hair, doesn't matter. एब्सोल्युटली यस I don't know if I answered your point, Kanchi. बिल्कुल सर बिल्कुल. इट्स द वे यू थिंक, आई थिंक, व्हिच मेक्स अ डिफरेंस. जैसे आपने बोला कि आप यू फील यंग and you want to learn as much as possible and you're not afraid to fail. So I think and you take up challenges, so just like a child. So thank you so much, sir. Dr. Rajesh Sharma, would you like to come in? Any comment, question? We would just like to take up. Yeah. Sir, I have one question. Was that when you became alone, rather instead of working with a team or becoming a manager, you went for all alone. Was it because of the situation, or it is just you wanted to be on yourself? मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर राजेश, जब मैं सिफी टेक्नोलॉजीज में गया तो मैं आई वाज हायर्ड टू क्रिएट देयर गवर्नमेंट बिजनेस. आई डिड दैट. अब जब मैं शुरू में तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर था, मेरी एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी, पर जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती गई, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो सेल्स है वो अलाइन, जो हमारे सेल्स हेड हैं, स्ट्रेटेजिक सेल्स हेड हैं, उनके संग, श्रीकांत के संग अलाइन कर दो. प्री सेल जो है वो सुकेतु के संग अलाइन कर दी थी. एक नई टीम बनी डिलीवरी की, हमने कहा उसके लिए बॉबी वाज द लीडर फॉर दैट. अब अगर आप देखिए तो मेरे लिए बड़ा आसान था उनमें से कोई भी रोल लेना, क्योंकि मैं ये क्लेम कर सकता था, नहीं ये मैं ही कर सकता हूँ. तो मतलब होता ना बकरी वाली मैं, तो मैं उसमें घुस जाता तो मैं सेल्स हेड बन जाता. पर शायद मुझे पता था कि आई एम गुड एट बीइंग अ बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन, बीइंग अ क्रिएटर, क्रिएट समथिंग, एंड आई एम नॉट गुड एट सेल्स. आई न्यू आई एम नॉट गुड एट सेल्स. अब उतने से मेरे को समझ में आ गया कि अगर सक्सेस चाहिए तो हमने वो टीम बनाई. तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं थी मेरे पास, बट आई थिंक कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली अपने आप से बात करता हूँ कि व्हाट आई एम नॉट गुड एट, सो दैट एक पर्टिकुलर रोल में मैं सक्सीड कर रहा हूँ. लेकिन इफ आई वेंचर इनटू सेल्स, माय फेलियर इज सर्टेन. That's a great realization, sir. That's a great realization. और मैं आपको सच बताऊं डॉक्टर राजेश, अब होता क्या था, चेयरमैन की कॉल होती थी, पूरे गवर्नमेंट बिजनेस का रिव्यू होता था, मैं चू नहीं करता था. क्योंकि फिर एक और दिक्कत होती है, लोग ना बीच में कोई टेबल पे कूदना शुरू कर देते हैं कि वो सेल्स वाला कुछ बता रहे हैं तो वो बकरी की मैं होती है ना कि ये मैंने किया, तो वो फिर वो कूदता है चेयरमैन को बताने के लिए, प्रेसिडेंट को फिर कूदता है. फिर वो प्री सेल्स की बात होती है, फिर वो इंसान जो है वो कूदता ही रहता है बीच में, तो सारी डिस्ट्रप्शन करता है. तो मैं पूरा गवर्नमेंट रिव्यू सेशन निकल जाता था, मैं चू नहीं करता था. उसके लिए थोड़ा सा एक और मेरा अपना मंत्र है, इनसिक्योरिटी मैनेजमेंट. शायद मैंने वो थोड़ा सा जाना है. मैं ऐसा नहीं कि मास्टरी तो बहुत बड़ी चीज है, मैंने ये जाना है कि यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर इनसिक्योरिटीज. ग्रेट सर. पूरे सेशन में मैं चू नहीं करता था और पूरा रिव्यू हो जाता था. मुझे पता था कि मेरे चेयरमैन को भी, मेरे जो पीयर्स हैं, कोलीग्स हैं, उन सबको पता है कि मेरा क्या रोल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं डिस्ट्रप्शन नहीं करता था. तो ऐसा नहीं था कि चॉइस नहीं थी, बट नोइंग व्हाट आई एम नॉट गुड एट, आई डिड इट बाय डिजाइन. Great sir. Thank you so much. Maybe one last question or comment from Jaideep Kar sahab. Yes sir, good evening Raghav ji and Sudhir sir, good evening Dr. Rajesh Sharma, Kanchan mein. Yeah, I'm actually really this is a wonderful session. We're learning from sir what things, the three things are said, they contribute independently instead of a manager. This is really good concept. Actually, we always work as a manager. We have to manage the team. If you're part of the team, if you contribute something, definitely to a role model for others. And the child inside you, the child can reskill, rethink, relearn, everything the child can do it. As Sir said rightly, if you're inside your child is, so that's a whole, till death, you can learn something. Because inside child is there and child is a habit to learn something. So that is actually take on today from the session. It's a really wonderful session. 3 points, whatever sir you discussed, really it is wonderful for each and everyone who are present here. Thank you sir. So nice. Jadhav, I'll just take a minute to explain you. When I say individual contributor,
आई थिंक उसमें भी एक सबसे बड़ी आपको एक कला सीखनी पड़ती है, हाउ टू वर्क इन अ वर्चुअल टीम। क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का मतलब ऐसा नहीं कि आप अकेले कर लेंगे, नहीं, काम तो टीम ही करेगी। हाँ, यस। लेकिन वो आप एक कला सीख लेते हो जिसको कहते हैं साइंस एंड आर्ट ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, के वर्चुअल टीम में व्हेन नोबडी रिपोर्ट्स टू यू, यू डोंट रिपोर्ट टू सो मेनी पीपल, बट हाउ डू यू वर्क इन वर्चुअल टीम, गेन क्रेडिबिलिटी, गेन सम कॉन्फिडेंस, give confidence, learn to work with different people without any authority, without any reporting line. वो एक कला है, वो धीरे धीरे हम जब सीख जाते हैं तो ये लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, और फिर हम चूज कर लेते हैं कि हम मैनेजर ना होके हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहेंगे, डिस्पाइट creating a government business for a company. You can continue to be individual contributor. Right. So one thing also, what I learned today, this accepting our things which are not and good at, we are not good at that, we have to accept first. जो चीज आपने बताया वो सबसे बच्चा है. In every house right now you will find that the CTO is living in every house. CTO, I mean, this is Chief Technology Officer. Either the youngster in the family, he is the Chief Technology Officer, and he is going to be CEO of your family in future. Because they actually, whatever we are facing a problem now, this technological age, somebody is at house, either your granddaughter or a son or somebody helping us. And definitely we have to accept we are not good at that part. So which are not good at, we have to also think that part also. And wherever we are doing well, that we have to work on it. Thank you, sir. So nice. Jadeb, you have to be honest to yourself. लोग कहते हैं you should be loyal and honest to your spouse, to your employer, to your company, to your समाज, पिताजी, माताजी. अरे भैया, पहले अपने आप से पहले be honest to yourself. आप अगर अपने आप से ईमानदारी बरत सकते हैं, जी सर, तो आप दुनिया में किसी के साथ भी ईमानदार हो सकते हैं. Lovely. I think with this we will close today's session, and today happens to be the auspicious occasion of Jagannath Rath Yatra, and the self-awareness mantra which sir has given, out of which every other mantra is emanating, and also the civilizationally assurance what sir has की insecurity management. भाई मेरे भाग्य का, मेरे कार्य का कोई नहीं ले सकता. If I am even delegating, I am even going upside. So each of these mantras would be requiring a specialized session. Today was just an inaugural, and it was a very great one. Thanks a lot, sir, for joining in, and we invite you to come for the next class, next session on next Monday at 7.